Children, we are going to start our financial statement from today onwards. So this is the first topic of financial statement where we are going to discuss the balance sheet. Okay, balance sheet as per part 1 schedule 3. In partnership also we studied balance sheet, but that balance sheet was just like as you have studied in standard 11, that only one side you are writing liabilities and one side you are writing assets. So that was simple form of balance sheet, that was called T-shaped balance sheet. But now here we are learning L-shaped balance sheet, that is according to schedule 3 part 1 of Companies Act 2013. So what is the format here? Number 1, with Roman number and block letter we write equity and liabilities. Number 2, with Roman number and block letter we write assets. So format is fixed, you have to write like this only. Then below equity and liabilities, 3 items will be there: shareholders fund, non-current liabilities and current liabilities. All these 3 items are called major head. Major head, okay, means these are the main headings. Below these headings there are subheadings, like in shareholder fund, share capital is there, reserve and surplus is there. In non-current liabilities, long-term borrowing and long-term provisions are there. Sometimes some other liabilities are there for long run, then we mention other non-current liabilities. Then in current liabilities, short-term borrowing, subheading trade payables and other current liabilities and short-term provision. Trade payables means creditors plus bills payable. What is the meaning of trade payable? Creditors and bills payable are called trade payable. Okay, so here we write only trade payable, in note to account we can mention that. Then other current liability means any other current liability is there which cannot be called short term borrowing or trade payable or short term provision, then we write other current liability. And short term provision means provision for short run. So these are the parts of liability side. First was shareholder fund, then non current liability, then current liability. Then we do the total. Then we go for asset side. In asset side, 2 major heads are there: non current asset and current asset. Okay, so in non current asset, first item is PPE, means property, plant and equipment and intangible asset. In this subheading is, first is PPE, means property, plant and equipment, means land, building, furniture, machinery. Then intangible asset like goodwill, patent, I mention here in bracket, land, building, furniture, machinery, etc. Okay, and in intangible asset, goodwill, patent, copyright, etc. Okay, then capital work in progress means what inventories are used in work in progress, which are in the process of work. Intangible asset under development means which intangible assets are under the process, like patent, copyright, some work is going on and mentioned in question, then those will come under these 2 points. In standard 12 rarely these 2 points are there, but we keep in mind. Then B number point is non-current investment, means investment for long run. Then C number point is long term loans and advances. Loans and advances for long run. Loans and advances for long run. Then D number point is other non-current asset. Any non-current asset is there which cannot be classified in PPE, non-current investment or long-term loans and advance, then we mention other non-current asset, as we do in liability, other non-current liability we write. Then second point is, second major head of asset side is current asset. Under current asset there are 6 subheads. One is current investment, means investment for short run. Another is inventory means stock. Okay, then trade receivable means debtors plus bills receivable. Then cash and cash equivalent means cash at bank, marketable securities. Short term loans and advance means firm has given loan or advance to any other firm or any other person for short run. Other current asset means any current asset which does not come in these 5. Okay, and then we get the total. So these 2 total will be equal as the balance sheet has. Okay, तो क्या सीखा हमने?
कि ये जो बैलेंस शीट है ये शेड्यूल 3 पार्ट 1 कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। ये एल शेप बैलेंस शीट होता है जिसमें सारे एसेट लायबिलिटी पर्टिकुलर्स कॉलम में लिखाते हैं। एसेट्स और लायबिलिटी का जो हेडिंग होता है वो यहाँ रोमन में नंबर 1 आ गया इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ और नंबर 2 आ गया एसेट्स। तो ये दोनों इनका पर्टिकुलर्स कॉलम का जो हेडिंग होता था वो आ गया यहाँ पे। इसके बाद इसमें मेजर हेड होते हैं, ठीक है। मेजर हेड कौन कौन है, तो ये जितने मैं ग्रीन टिक कर रही हूँ ये सब मेजर हेड है। तो 3 मेजर हेड हैं लायबिलिटी साइड में और 2 मेजर हेड हैं एसेट साइड में, ठीक है। इन मेजर हेड के अंदर फिर सब हेड हैं। तो पहला मेजर हेड है शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स फंड में क्या है सब हेड, शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल का मतलब इसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आ जाएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और या फिर इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल दोनों ही दे तो वो शेयर कैपिटल ही कहलाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस में जितने भी रिजर्व हैं जितने भी सरप्लस है सब। नॉन करेंट लायबिलिटी में क्या आएगा, नॉन करेंट का मतलब होता है लंबे समय के लिए, थोड़े समय के लिए नहीं, ठीक है। तो इसको कैसे हम लोग याद रखते हैं कि करंट हमें थोड़ी देर के लिए लगता है, ये नॉन करेंट है, मतलब थोड़ी देर के लिए नहीं है, काफ़ी देर के लिए है। तो नॉन करेंट लायबिलिटी में कौन कौन सा आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इसमें एक और आइटम होता है अदर नॉन करेंट लायबिलिटीज, उसको भी हम लोग यहाँ लिख ही देते हैं, अदर नॉन करेंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो अगर कोई लॉन्ग रन का लायबिलिटी है जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी नहीं है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी नहीं है, तो उसको लिख देंगे अदर नॉन करेंट लायबिलिटीज। फिर तीसरा मेजर हेड है करेंट लायबिलिटी। इसके अंदर 4 हमारे सब हेड हैं। एक है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, मतलब छोटे समय के लिए लोन लिया जाए, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट है, ठीक है, इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाता है, बैंक ओडी। ट्रेड पेबल्स में क्रेडिटर और बिल्स पेबल आ जाता है। अदर करेंट लायबिलिटी जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वगैरह है तो वो आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है। फिर शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में कम समय के लिए जो प्रोविज़न है, जैसे प्रोविज़न फॉर टैक्स होता है तो वो आ जाता है। फिर है नॉन करेंट एसेट, एसेट साइड में नॉन करेंट एसेट के अंदर ABCD 4 हेडिंग है हमारा। ए है PPE एंड IA, मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। तो इसके अंदर फिर इसका सब पॉइंट है। ये तो मेजर हेड है नॉन करेंट एसेट, सब हेड है PPE एंड इंटेंजिबल एसेट। और PPE इंटेंजिबल एसेट में कौन PPE है और कौन इंटेंजिबल एसेट है। तो अगर वो टेंजिबल है तो PPE है, टेंजिबल एसेट को PPE बोलते हैं, और अगर वो इंटेंजिबल एसेट है तो IA हो गया, इंटेंजिबल एसेट। फिर है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है कि अगर कोई टेंजिबल एसेट का काम चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस है, जैसे बिल्डिंग इन प्रोग्रेस, तो आ जाएगा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में। और अगर इनटेंजिबल एसेट का काम चल रहा है, जैसे पेटेंट पे काम चल रहा है, कॉपीराइट पे काम चल रहा है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो वो आ जाएगा इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। ये दोनों पॉइंट हमारा बहुत रेयरली आता है 12 में, बट हम लोग इसको भी अपना माइंड में रखेंगे। तब B नंबर पॉइंट क्या है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। जब भी इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग रन दिया रहेगा हमारा, तो हमारा मेजर हेड हो जाएगा नॉन करेंट एसेट और सब हेड हो जाएगा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। फिर C नंबर है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। फॉर्म ने किसी को लंबे समय के लिए लोन और एडवांस दिया है तो एसेट है फॉर्म के लिए, तो लंबे समय के लिए है, लॉन्ग टर्म है तो नॉन करेंट एसेट मेजर हेड और सब हेड हो गया लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। फिर अगर कोई ऐसा नॉन करेंट एसेट है जो A, B और C में नहीं आ रहा है तो वो D में चला जाएगा अदर नॉन करेंट एसेट नाम से। इसके बाद फिर क्या है, करेंट एसेट है। करेंट एसेट में क्या क्या आता है, तो करेंट एसेट में हमारा पहला आता है करेंट इन्वेस्टमेंट, मतलब कम समय के लिए इन्वेस्टमेंट। दूसरा इन्वेंट्री है जिसमें स्टॉक है, स्टॉक से रिलेटेड मटेरियल आ जाएगा। फिर क्या है, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या आएगा, तो डेटर्स और बिल रिसीवेबल आता है। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, ये सारे आ जाते हैं। शॉर्ट टर्म लोन एडवांस का मतलब हुआ फॉर्म ने किसी को थोड़े समय के लिए लोन या एडवांस दिया है। और अदर करेंट एसेट, मतलब कोई भी करेंट एसेट है, हमें पता है वो करेंट एसेट है लेकिन वो ABCDE के अंदर नहीं आ रहा है, तो F नंबर चला जाएगा अदर करेंट एसेट। तो ये बैलेंस शीट मैंने सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है। अब है कि देखने में लगता है इतना बड़ा बैलेंस शीट है कैसे याद होगा, तो इसको याद रखने के लिए हमें देखना है कि मेजर हेड तो सिर्फ 5 ही है, इसको हम लोग छोटा सा करके इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं इसको छोटा सा एक नोट जैसा बताती हूँ। ये एक बॉक्स लिया हमने और हमारे पास जो मेजर हेड है ये टोटल होता है बैलेंस शीट का। यहाँ होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी 1 नंबर और 2 नंबर होता है एसेट, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर बस 3 हेडिंग है, एक है शेयर होल्डर फंड, दूसरा है नॉन करेंट लायबिलिटी और तीसरा है करेंट लायबिलिटी। और यहाँ क्या है, एक है नॉन करेंट एसेट
और दूसरा है करेंट एसेट। बस ये 5 आइटम से मिलके ये बैलेंस शीट तैयार हो जाता है। इसमें यहाँ टोटल आ जाता है। ठीक है, अब बस हमें ये 5 आइटम अगर हम याद रखते हैं तो यानी एग्जाम में हम मेजर हेड तो आसानी से लिख ही सकते हैं। उसके बाद दूसरी बात क्या होती है कि अगर हमको ये हेडिंग समझ आ जाए, मेजर हेडिंग, तो बाय नेचर हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन किसका सब हेडिंग होगा। ठीक है, तो इसके लिए ऑब्जर्व करना होगा और कुछ क्वेश्चंस उठा के मेजर हेड सब हेड के हमें करने होंगे। तो अब एक हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे हम लोग मेजर हेड और सब हेड डिटरमाइन करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने एक समरी जैसा तैयार किया है, केवल लायबिलिटी साइड के आइटम्स लिए हैं इसमें। तो इसको आप देखिए, जैसे कि डिवेंचर्स हैं, तो डिवेंचर्स हमारा क्या लिखा हुआ है, नॉन करेंट लायबिलिटी होता है। क्यों? क्योंकि डिवेंचर कंपनी लंबे समय के लिए इशू करती है। ठीक है, फिर पब्लिक डिपॉजिट्स, मतलब पब्लिक से कंपनी ने डिपॉजिट लिया हुआ है तो वो भी कंपनी के लिए लायबिलिटी है, तो नॉन करेंट लायबिलिटी है। ठीक है, तो नॉन करेंट लायबिलिटी का लोकेशन क्या है? जब हम नॉन करेंट लायबिलिटी बोले तो हमारे दिमाग में ये वाला पिक्चर चलना चाहिए कि नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर क्या क्या होता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन और अदर नॉन करेंट लायबिलिटी। तो ये क्या है, लंबे समय के लिए लोन लिया हुआ है, तो दोनों ही क्या हो गया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है, यानी कि मेजर हेड हो गया नॉन करेंट लायबिलिटी और सब हेड हो गया लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम मतलब रिजर्व एंड सरप्लस है। तो जो भी चीज़ रिजर्व है, सरप्लस है, वो शेयर होल्डर फंड के अंदर है। तो इसका मेजर हेड हो गया शेयर होल्डर फंड और सब हेड हो गया रिजर्व एंड सरप्लस। देखिए वही लिखा है, शेयर होल्डर फंड, रिजर्व एंड सरप्लस। इसके बाद नेक्स्ट है कैपिटल रिजर्व। जहाँ भी रिजर्व लिखा हुआ दिखेगा वो शेयर होल्डर फंड होगा और रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर होल्डर फंड में रिजर्व एंड सरप्लस का ये सारा आइटम है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट क्या होता है कि कंपनी जब शेयर फॉरफिट कर लेती है तो उस पर जो अमाउंट रिसिव्ड रहता है वो कंपनी के पास रह जाता है। ठीक है, तो उसको सब्सक्राइब कैपिटल में ऐड किया जाता है। तो देखिए सब्सक्राइब कैपिटल में प्लस लिखा हुआ है शेयर होल्डर फंड और क्या लिखा हुआ है, सब्सक्राइब कैपिटल फॉर प्लस। तो सब्सक्राइब कैपिटल बोलेंगे, यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो सब्सक्राइब कैपिटल यही है, जो शेयर कैपिटल है वही सब्सक्राइब कैपिटल है। नोट टू अकाउंट में इसको ऐड करके दिखाया जाएगा। इसके बाद फिर क्या है, तो ये सब कुछ स्पेशल आइटम है, जैसे ये सब कम मिलता है तो इसको ध्यान रखना है हमको कि ये जो है हमारा फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, ये हमारा एक स्टार पॉइंट है कि ये सब आइटम कम दिखता है। फिर क्या है, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन डिवेंचर। इंटरेस्ट अक्रू हो रहा है और ड्यू हो रहा है, तो कोई चीज़ ड्यू हो रहा है मतलब आपके लिए लायबिलिटी है और इंटरेस्ट तो भाई इसी साल देना है, इसको 3-4 साल तक नहीं रोक सकते हैं। तो ये क्या है, करेंट लायबिलिटी है। तो करेंट लायबिलिटी हमारा यहाँ है। करेंट लायबिलिटी के अंदर 4 आइटम है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, तो बोरो नहीं करिए कंपनी, इंटरेस्ट देना है कंपनी को। ट्रेड पेबल नहीं है, क्रेडिटर या बिल्स पेबल नहीं है, ये कोई प्रोविज़न भी नहीं है, तो क्या है, अदर करेंट लायबिलिटी। तो क्या लिखा हुआ है, करेंट लायबिलिटी, अदर करेंट लायबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, करेंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। अब इसको हड़बड़ा के लॉन्ग टर्म डेट पे फोकस नहीं करना है, करेंट मैच्योरिटी पे फोकस करना है। करेंट मैच्योरिटी है मतलब इसको इंस्टेंटली पे करना है। ठीक है, ये सारे कम मिलने वाले पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। तो करेंट मैच्योरिटी वर्ड दिख गया, यानी करेंट लायबिलिटी है ये। और करेंट लायबिलिटी क्या है भाई, लॉन्ग टर्म डेट का करेंट मैच्योरिटी है। तो ये हमारा क्या है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग है कि थोड़े समय के लिए जो बोरो किया है हमने कि इसको पे कर देना है, वो है। ठीक है, करेंट मैच्योरिटी है, तो करेंट मैच्योरिटी मतलब इस साल उसको पे करना है, मतलब थोड़े समय का लोन है उसको पे करके हटाना है। मतलब लॉन्ग टर्म डेट का कुछ पार्ट जो है वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। नेक्स्ट क्या है, एडवांस रिसिव्ड फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर से एडवांस मिला है, तो एडवांस मिला हुआ है तो करंट लायबिलिटी है। और कैसा एडवांस है ये, अदर करंट लायबिलिटी। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है करंट अदर करंट लायबिलिटी, उसी तरह से एडवांस इनकम भी करंट लायबिलिटी है, एडवांस इनकम। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स हमने पहले ही क्या पढ़ा, क्रेडिटर्स क्या होता है, बिल्स पेबल होता है, ट्रेड पेबल होता है। तो सब हेडिंग होगा ट्रेड पेबल और मेजर हेड होगा करंट लायबिलिटी। तो देखिए क्या लिखा है, क्रेडिटर्स के लिए करंट लायबिलिटी मेजर हेड, सब हेड ट्रेड पेबल। फिर है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। ठीक है, तो 2 तरह का प्रीमियम है, ये सिक्योरिटी प्रीमियम है, इसको याद रखना है कि ये सिक्योरिटी प्रीमियम था तो ये रिजर्व एंड सरप्लस में गया। और ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का मतलब होता है कि जब कंपनी रिडीम करेगी डिवेंचर को तो एक्स्ट्रा पैसे के साथ रिडीम करेगी, एक्स्ट्रा पे करेगी। और ये डिवेंचर्स 5 साल 7 साल के लिए इशू होते हैं, मतलब 5-7 साल वाली कंपनी को एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो ये नॉन करेंट लायबिलिटी है। और नॉन करेंट लायबिलिटी में ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग नहीं है, क्यों, क्योंकि ये डिवेंचर नहीं है। डिवेंचर होता तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता, ये प्रीमियम ऑन डिवेंचर है। तो प्रीमियम क्या हो जाएगा, अदर नॉन करेंट लायबिलिटी में चला जाएगा। तो ये चला गया अदर नॉन करेंट लायबिलिटी।
मतलब एक एक वर्ड को पकड़ के हमें अपना आंसर डिसाइड करना है। फिर क्या है, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन सिक्योर लोन। तो इंटरेस्ट जब भी अक्रूड होगा और ड्यू होगा तो करंट लायबिलिटी होगा, और सिक्योर लोन पे हो, डिवेंचर पे हो या अनसिक्योर लोन पे हो। हमें फोकस करना है अक्रूड एंड ड्यू वर्ड पे, यहाँ भी है अक्रूड एंड ड्यू, ठीक है। तो अक्रूड एंड ड्यू हो रहा है, मतलब ड्यू हो रहा है मतलब पेमेंट करना बाकी है, तो करंट लायबिलिटी हो गया। और करंट लायबिलिटी में कैसा करंट लायबिलिटी, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग नहीं है, हमने मांगा नहीं है किसी से, ट्रेड पेबल नहीं है, ना ये क्रेडिटर है, ना बिल्स पेबल है, ना ये प्रोविजन है, तो बचता क्या है, अदर करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट क्या है, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। जब रिजर्व दिखेगा तो क्या होगा, रिजर्व एंड सरप्लस। और रिजर्व एंड सरप्लस किसका अंडर है, शेयर होल्डर फंड। तो मेजर हेड हो गया शेयर होल्डर फंड, सब हेड हो गया रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा एडवांस फ्रॉम कस्टमर, और ब्रैकेट में लिखा है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का एडवांस है, लॉन्ग टर्म है मतलब एडवांस लेना, कस्टमर से हमने एडवांस लिया है तो लायबिलिटी हमारे लिए। और लॉन्ग टर्म है तो कैसा लायबिलिटी होगा, करंट तो होगा नहीं, है तो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, तो नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। कैसा लायबिलिटी होगा, नॉन करंट। अब नॉन करंट लायबिलिटी में एडवांस लिया कस्टमर से, लॉन्ग टर्म बोरोइंग नहीं है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन नहीं है, तो क्या बच जाता है, अदर करंट लायबिलिटीज़। तो ये आ गया अदर करंट लायबिलिटीज़। फिर क्या है, एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड पेएबल। पेएबल का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, पेएबल का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग कोई चीज़ होता है एक्सपेंस, प्रोविडेंट फंड पे करना बाकी है, मतलब वो करंट लायबिलिटी है। तो करंट लायबिलिटी में किस तरह का करंट लायबिलिटी है, तो आउटस्टैंडिंग कहाँ जाता है हमारा, अदर करंट लायबिलिटी में। फिर है ट्रेड पेएबल्स। तो ट्रेड पेएबल्स हमने देखा है कहाँ है, यहाँ है सब हेडिंग में, और उसका करंट लायबिलिटी है हेडिंग, तो आ गया करंट लायबिलिटी ट्रेड पेएबल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रोविज़न फॉर टैक्स। टैक्स के लिए प्रोविज़न, तो टैक्स तो गवर्नमेंट नहीं मानेगी कि आप 4-5 साल बाद दीजिए, तो हर साल देना है, एनुअली देना है, तो कैसा लायबिलिटी होगा, करंट या नॉन करंट, तो करंट लायबिलिटी होगा। और क्या आएगा, ये शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, तो क्या आ गया, करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म प्रोविज़न। इसके बाद क्या है, सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल। सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल का डेबिट बैलेंस है, मतलब लॉस है। हम लोग पहले भी पढ़े, पीएल डेबिट बैलेंस लॉस होता है, तो लॉस है तो भी शेयर होल्डर फंड में ही जाएगा और रिजर्व एंड सरप्लस में ही जाएगा, बस माइनस फिगर में जाएगा। क्या होगा, फिगर माइनस होगा। फिर है सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल क्रेडिट। क्रेडिट है पीएल मतलब प्रॉफिट है, तो भी शेयर होल्डर फंड में जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में बस प्लस होगा, मतलब लोकेशन चेंज नहीं होगा। प्रॉफिट हो या लॉस हो, रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। लॉस भी प्रॉफिट है बट नेगेटिव प्रॉफिट है, प्रॉफिट माइनस में है तो लॉस कहलाता है, तो रिजर्व एंड सरप्लस में ही दोनों जाएगा। उसका मेजर हेडिंग शेयर होल्डर फंड होगा और सब हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस होगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, प्रोपोज्ड डिविडेंड। प्रोपोज्ड डिविडेंड क्या है, ये एक कंटिजेंट लायबिलिटी है, मतलब अभी फिक्स नहीं हुआ है कि डिविडेंड कितना देना है, अभी बस प्रपोजल गया है। तो इस तरह का जो कंटिजेंट लायबिलिटी होता है जिसका अमाउंट फिक्स नहीं है, उसको हम लोग नोट टू अकाउंट में दिखाते हैं। फिर अनकॉल लायबिलिटीज ऑन शेयर्स। शेयर्स पे अनकॉल लायबिलिटी है, तो ये भी कैपिटल का कमिटमेंट है कि अगर शेयर पे अनकॉल लायबिलिटी है और कॉल किया जाए तो देना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को। तो ये क्या है, हमारा नोट टू अकाउंट में जाता है। ये दोनों स्पेशल टर्म है। तो हमने आज लायबिलिटी साइड के सारे फिगर डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं एसेट साइड के फिगर डिस्कस करूँगी, फिर कुछ और एग्जाम्पल भी करेंगे, ठीक है। अच्छे से पूरे वीडियो को आप लोग ऑब्जर्व करो और जहाँ पे भी डाउट होता है मुझे बताओ। मैंने कोशिश किया है कि वॉइस इम्प्रूव हो, इससे पहले थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैंने माइक यूज किया है, तो मुझे बताइए कि कैसा हो रहा है, ठीक से जा रहा है आवाज़ या नहीं। थैंक यू।